Okay, we will write a program. Sorry. We will write program, input any three number and find largest and smallest number. So first we'll take a variable a equal to, I will give a comment, input any three number and find smallest number. A equal to int input first number, b equal to int input second number, and c equal to int input third number. Okay. Now we will test it with the help of conditional statement if smallest number we are try to find out if a is less than b. If a is less than b, and it's an and operator, and if both condition is going to true, then body of if will be executed. If a is less than b and a is less than c both, if a is less than b and a is less than c, then a will be smallest number. Print a is the smallest one. Another statement, elif. Elif stands for else if. Elif, it's else if else if b is less than a and b is less than c, then print b is the smallest one. Final else. Otherwise, if both condition found false, then it will print, then obviously number c will be the smallest. C is the smallest one among all three. So we can execute it. So 24 July program number 2.py. Execute it. Input first number. So it's a 20. Input second number, it's a 12. Input third number, it is 19. So number B is the smallest one. Number B is the smallest one with the help of these conditions. It receives value A, B, C, value for A, B, C. After that, it performs testing. If A is less than B and A is less than C. If this is true, A is less than B. If this one is true and A is less than C, if both condition is true, only then body of if will run. Otherwise, it will be skipped. So we have given the input. Just check it. In A, value 20 assigned. In B, 12. I am marking here with the help of comment. Here, A. I am writing with the help of comment. A equal to 20. And B is equal to 12 and C is equal to
C is equal to 19. It will perform testing. If A is less than B, no. A is not less than B. A is greater than B. This will return false. If any condition is found false, then this part, this block will be skipped. Here this statement is false. It is not going to test this. If A is less than C, it is also false. Then body of if is not going to execute. Then it will skip to switch to this statement, elif B is less than A, yes, B is less than it, that is true, and this should also be true. B is less than C, yes, definitely it's true. Then it will print B is smallest one, and this else part will be skipped. Hello. Yes, sir. Now next we will write a Python program to input any string and test number is string is palindrome or not. We can also test number is palindrome or not. इससे पहले हम लोग कर भी चुके हैं. तो input any string and check string is palindrome or not. N equal to input any string and will hold a string, and we will find the length of string very first. L equal to len of n, and after that because we have to test the first character, the character which is stored at index 0 and last character at index -1. If both characters are equal, and same like if we will increase the indexes 0 to 1 and -2 to -3, if all characters are same first to last, if both characters are same, and likewise we will perform increment operation from both side, and we will keep testing. If both characters are same, then string will be palindrome. तो यहाँ पे हम लोग इसका मिड निकालेंगे. मिड इक्वल टू मिड पोजीशन L by 2. We will divide the length by 2. It's a floor division. It will eliminate the fraction part, and for I in range 0 comma mid plus 1, 0 comma mid plus 1, it will increment it automatically by 1. This is the code shared by Virat. Code shared by Virat, sir, in single program, 1 to 100 squares of number. Very good, very good. We will. I will demonstrate it after executing this program. I will demonstrate it, Virat. That's nice work. And we will test it if n of i is equal to n of we will assign a new variable reverse rev equal to -1 is equal to rev. Then
I will be incremented automatically because it is part of that loop, and we will perform decrement operation in reverse. Rev equal to rev minus 1. It will keep testing if if suppose that it will be failed, then the body of else will break that loop. Print string is not palindrome, not palindrome, and it will break the loop. It will terminate the loop. And we can also write else for particular loop for a while. Else print the given string is palindrome. Now we have written that program. It's a 24 July, program number 3. Input any string. So I'm giving an input Malayalam. The given string is palindrome. See this? I'm executing it again and giving any other string. Einstein. String is not palindrome. You can see this and also check how this code is executing. I am executing it again. Input any string, madam. The given string is palindrome. See how this code is executing. Madam is storing in n, and that is n of 0 is m, and n of minus 1 is, which is minus 1 was stored by variable rev reverse, is also m. If both string are equal, then it will go for next iteration. The loop will go for next iteration. It is not it will skip the part of else, and if else part will be skipped, then this break also will be skipped. This whole block will be skipped if statement is will be true continuously. If in next iteration n I will be 1, n of 1 is equal to n of reverse equal to reverse minus 1. It will be minus 3, minus 1, minus 2. Also a, we can also test it like this: n of 1 equal to n of minus 2. Then this will return true. See this: true stands for 1 and false stands for 0. And only it work on like if or for it. If it receive 1 variable 1, this statement give either 0 either 1. Say this: if 1, it will be true forever. अगर इनपुट 1 आ रहा है कि ये 1 होल्ड करता है या 0 होल्ड करता है, अगर 0 होल्ड किया तो फॉल्स, और अगर 1 होल्ड किया तो ट्रू. It will also it can also receive true or false. तो ये स्टेटमेंट इसको या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा. ये स्टेटमेंट था इसका जो पहले हम लोगों ने लिखा था, दिस वन. n of I is equal to n of rev. समझ में आ रहा है आप लोगों के? हेलो हेलो. यस सर. स्ट्रिंग का दोनों साइड से आप उसका जो इनिशियल 0 से लेके और उस तरफ रिवर्स का, जैसे स्ट्रिंग
स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग मैंने आपको पहले बताया था, इंडेक्सिंग इसकी 0 से लेके उसका जो भी लेंथ होता है, लेंथ -1 तक जाती है। जैसे n में मैडम स्टोर है तो एलियन ऑफ n देखेंगे तो 5 आया, तो 0 to 4 तक की इंडेक्सिंग होती है। अगर हम इसको बुलाएंगे n of 4 तो इसका सबसे लास्ट वाला जो कैरेक्टर m है वो आएगा, या n of -1 तब भी लास्ट वाला कैरेक्टर आएगा, और n of 0 से फर्स्ट कैरेक्टर आएगा। तो हम लोग क्या टेस्ट करते हैं, जो 0 वाली इंडेक्सिंग है और जो लास्ट वाली इंडेक्सिंग -1 है, उसी से उसकी इक्वलिटी चेक करते हुए आते हैं और मिड तक आते हैं। और अगर पूरा सभी दोनों साइड की स्ट्रिंग इक्वल है, बराबर है, उसकी आईडी सेम है, तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होती है, नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं होगी। तो ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रिंग को हमने बताया था कैसे ये मेमोरी में स्टोर होती है। अभी मैं इसका विराट का एक प्रोग्राम मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगा। यहाँ पे आप लोग भी बना के यहाँ पे कोड शेयर कर सकते हो। यहाँ पे देख लेते हैं ये आपकी स्ट्रिंग कैसे स्टोर होती है। कल से आप लोग एक एक प्रोग्राम सब लोग बना के लाइए, चैट बॉक्स में शेयर करिए। ये देखिए, अगर n इक्वल टू आइंस्टाइन है तो इधर का इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 5 2 7, और ये इस तरफ का है -1। तो ये हम लोग कैसे टेस्ट कराते हैं, ये 0 का और इस वाले से -1 से, मतलब n of 0 इज इक्वल टू n of -1 इफ बोथ आर इक्वल। अब यहाँ पे इनइक्वल हो गया, पहली बार में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स हो जाएगी तो कहाँ चलाएगा, कहाँ आएगा, एल्स पे चलाएगा। स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम और ब्रेक कर देगा प्रोग्राम को और बाहर हो जाएगा इस पूरे लूप से। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? सादात, सूरज, ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कैसे हम लोग स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, कोई नेम दिया हम लोगों ने, और ये पैलिंड्रोम है या नहीं है कैसे चेक करते हैं? अगर इसका ये फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर इक्वल, इसका सेकंड और इसका सेकंड लास्ट इट्स आल्सो इक्वल, ऐसे इसी क्रम में आप मिड तक आते हैं। अगर वो कैरेक्टर्स, उसके दोनों साइड कैरेक्टर्स इक्वल हैं, मिड के इस तरफ का, एक मिड का इस तरफ का, तो मिड वाला तो दोनों में कॉमन रहेगा, मिड वाला तो कॉमन रहेगा। अगर दोनों साइड के इक्वल हैं, वही हैं, सेम कैरेक्टर्स हैं, तो स्ट्रिंग आपकी क्या होगी, पैलिंड्रोम होगी। और इसी को हम लोग नंबर में भी कर सकते हैं। ये कोड आई थिंक समझ में आ गया होगा सबके। अगला प्रोग्राम करें। अब देखते हैं, विराट ने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, हम लोग इसको चलाते हैं। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ, तो इसको हम लोग लिखते हैं अभी। सर वहाँ फॉर आई इन रेंज होगा, थोड़ा गलत हो गया। इसकी, हाँ ये मैं देख रहा हूँ यहाँ से। हाँ मैं देख रहा हूँ। ओके, ये ऊपर हो जाएगा। काफी कुछ आपने सीख लिया है, दैट इज गुड सिंबल, ठीक है। किसी ने कोड शेयर किया क्या? परीक्षित, वेरी गुड। परीक्षित ने भी कोड शेयर किया हुआ है नंबर रिवर्स करने का, इनपुट एनी नंबर। हाँ वेरी गुड, नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं ये चेक करने के लिए परीक्षित ने कोड शेयर किया यहाँ पे, वेरी गुड। तो इसकी एक लाइब्रेरी आप लोग बना सकते हैं और इसको रखे चलिए। छोटे छोटे प्रोग्राम बहुत ही काम के होते हैं, यही इसका बेसिक फाउंडेशन है कोडिंग का। जो भी फार्मूला मिले, आप फिजिक्स वगैरह के कुछ फार्मूले इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए, तो इससे आप काफी कुछ चीजें आप सीख जाएंगे। और ये इनका कोड है विराट का, मैं इसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, इसे मैं विराट नाम से सेव कर दे रहा हूँ।
तो वहाँ फॉर आई इन रेंज होगा, थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया। और सर फॉर इन, सर वहाँ प्रिंट वैल्यू साथ में रहेगा, ऊपर एकदम फर्स्ट लाइन में। अच्छा अच्छा, दूसरा सर और नीचे भी साथ में रहेगा। हाँ ये फंक्शन का नाम है, वेरी गुड। वहाँ फॉर आई इन रेंज होगा ना, फॉर आई इन रेंज। क्योंकि कॉपी पेस्ट होके आया था कोड, मुझे लगता है उसी में कुछ इसको प्रॉब्लम हो रही है। फॉर आई इन रेंज, अच्छा ये इसके अंदर रहेगा ना। एल इक्वल टू लिस्ट, ये क्या कर रहा है? ये ऐसे हो जाएगा, हाँ लिस्ट आप इनपुट करेंगे। मोहम्मद सादाब ने भी कोड शेयर किया हुआ है, इनपुट टू नंबर्स। सर हाँ 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 हाँ, सर इसको एक लाइन में एक ही नंबर का स्क्वायर करना बता दीजिए, जो एक लाइन में 5, 6, 10, 15 ठोर आ रहा है। फिर से बताइए क्या कह रहे हैं विराट? जैसे पहली लाइन में 1 का स्क्वायर, फिर दूसरी लाइन में 2 का स्क्वायर, फिर तीसरी लाइन में 3 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे है ना। इसमें एक के बगल एक हो गया है। हाँ हाँ हाँ, जैसे आए पहली लाइन में 1 स्क्वायर, फिर दूसरी लाइन में 2 का स्क्वायर, फिर तीसरी लाइन में 4 का स्क्वायर। अच्छा अच्छा, तो इसको पहले अपेंड आप हो जाने दीजिए। जैसे ये अपेंड हो जाता है तो अपेंड होने के बाद आप इसकी एक लेंथ ही निकाल लीजिए पूरी। एस इक्वल टू एलियन ऑफ, आपकी जो लिस्ट है एल है, और एक लूप आपने चला दिया फॉर आई इन रेंज एल, सॉरी एस में आएगा ना, एस। उसकी पूरी साइज आ गई, और यहाँ पे आप डिस्प्ले करा दीजिए प्रिंट, और आपका जो लिस्ट है एल, एल ऑफ आई, तो ये पूरी एक लाइन में जाएगी सीधा ऐसे। हेलो, जी सर, ऐसे। और इसको अगर आप इसको भी अलग अलग, जैसे लिस्ट के बाहर प्रिंट करना था तो एंड इक्वल टू ऐसे कर देंगे अलग अलग। ये अब ब्रैकेट के बाहर हो गया, जैसे वो उससे पहले ब्रैकेट में आ रहा था तो उस ब्रैकेट के बाहर हो गया। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप लिस्ट, मैं अभी शुरू नहीं किया हूँ, तो ये लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। स्ट्रिंग के बाद हम लोग लिस्ट पढ़ेंगे, तो लिस्ट में ही अपेंड वगैरह होता है। तो ये अच्छा सिंबल है। आपने यहाँ तक आपने देख लिया है, आपने लिस्ट प्रोसेस किया, उसमें अपेंड भी यूज किया। कुछ अच्छे बहुत जरूरी फंक्शंस हैं जो डेटा स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग यूज करते हैं। अभी मैं कुछ और प्रोग्राम कुछ बच्चों ने शेयर किया, उसको भी रन कराते हैं हम लोग। तो दैट्स वेरी गुड। जल्दी हम लोग हो सकता है कि मंडे से लिस्ट स्टार्ट करेंगे, तो कोई जल्दीबाजी नहीं है। आराम से खूब सुकून से कोडिंग करते रहिए और उसको नोट करते जाइए, छोटी छोटी चीजें जरूर लिखिए, और कोई डाउट है तो बिल्कुल डिस्कस करिए बिना घबराए, क्योंकि यही चीजें यूज करके लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैंडल कर रहे हैं, बना रहे हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा अतिरिक्त नहीं है। जो एक्स्ट्रा है उसको आप डिस्कस करिए, उसको हम लोग देखेंगे, मिलके देखेंगे।